Assalamualaikum, dear students. Hope you are fine. So, as you know, we in today we are discussing about these disasters and how we this cope up the disasters and how we minimize the loss of the disasters. So we cannot stop the occurrence of disasters. Already, I discussed with you, but there are the some techniques. There are the some cycles through we can minimize the loss of these disasters. So listen, beta. As you know, this survival by using these survival cycles can mitigate this loss of these disasters, and there are these some cycles. That is the surge and operation cycle. So by practicing surge and operation cycle, so through this cycle we can minimize the loss of disaster, and there the disaster maybe not this worsen more. यानी जो disasters हमारी condition को वर्स कर रहे हैं, तो अगर हम सर्च एंड ऑपरेशन स्किल अपनाएंगे तो इससे डिजास्टर्स और ज्यादा डिजास्टीरियस हमें ज्यादा महसूस नहीं होंगे, क्योंकि जब हम ये सर्वाइवल स्किल अपनाएंगे तो आपने देखा वहां पे सर्वाइवल स्किल में हमें अपनी वी हैव टू फाइंड दीज विक्टिम्स व्हिच आर कॉट इन द डिजास्टर्स, particularly in these that is the earthquake disaster, and take away this hostile environment, this victim जो ये damaged and hostile environment है, and we have to take away this immediately this victim person from this disastrous site, and this available using this some first aid, हमें इसको first aid provide करके, and should be on the priority basis refer to the hospital, यानी उसको हमें हॉस्पिटल करना और ये चीजें करने से आप देखो लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा नहीं होगा अगर हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑलरेडी जो ये वॉलंटियर्स भी कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज हैबिटेटिंग दिस डिजास्टरियस एरिया, जो लोकल कम्युनिटीज आप देखो जो डिजास्टर एरिया प्रोन टू डिजास्टर्स होते हैं, दे कैन परफॉर्म दिस सर्च एंड स्किल, बट समटाइम्स द डिजास्टर्स आर आउट ऑफ दिस local people and out of control of local people. So the professionals, team of professional scope of this disaster performs this search and operation cycle, and this team is of professionals is a well trained this team, and they are physically strong and they are equipped with modern these devices, so they perform this search and operation very well, and without any damage and without any this team damage or without any this further damage to the victim. And now there's objectives of this team composition per team of professionals, objective of search and rescue team. What are their objectives, why they are this perform the during the disaster search and rescue, what is the objective behind this? So already I discussed with you, that is the 2 pointers earlier I discussed in the earlier this lecture, that the first point I remind you this that was the search the victim in debris and timely rescue. So इनका मकसद जो होता है जनरली सर्च द विक्टिम्स फ्रॉम द डेब्रिज, जो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होता है उनका ऑब्जेक्टिव जो बेटा होता है, सो सर्च द विक्टिम इन द डेब्रिज एंड टाइमली रेस्क्यू टू द सेफ्टी, और साथ में उसको सेफ्टी इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर रही है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्च एंड रेस्क्यू टीम। ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या काम कर रही है, क्यों हम बनाते हैं टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, क्यों हम डिजास्टर टीम बनाते हैं एंड जो सर्च एंड रेस्क्यू, उनका मकसद होता है कि हम इन जो भी लोग जो भी विक्टिम्स किसी भी डिजास्टर में फंस जाएंगे, हम उस डिजास्टर में जाके उनको वहां से सर्च करेंगे, उन विक्टिम्स को जो फंस चुके हैं, और वहां से उनको सेफ इन्वायरमेंट में ले जाएंगे। ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। एंड दूसरा जो होता है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, देन आफ्टर शिफ्ट टू दिस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और वी कैन से दिस सेफ इन्वायरमेंट आफ्टर दिस सर्च इन द विक्टिम फ्रॉम द डिजास्टर side, they shift you to the safe environment and provide the first aid, and वो पहले इसको first aid provide कर रहे हैं and then shift to the hospital on the priority basis। उसके बाद वो यानी first aid provide करके आप देखो जल्दी से जल्दी इसको hospital provide कर रहे हैं। ये भी उनका मकसद होता है ताकि ये loss of life, ये जो ये person है victim है, इसको more जो ये इसकी condition है worse ना हो जाए, इसलिए उसको first aid दे के priority basis पे इसको hospitalize करते if needed, अगर जरूरत
बढ़ गई। तो इन चीजों से आप देखो, अगर ये डिजास्टर आ चुका है, जब हम इस डेथ्स को कंट्रोल करेंगे, जब हम इंजर्ड पीपल को आप देखो टाइमली सेव करेंगे, तो आप देखो ये डिजास्टर हमें ज्यादा डिजास्टीरियस फील नहीं होगा। क्योंकि डिजास्टर तभी डिजास्टर जब इससे लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। तो जब हम लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करेंगे, डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को, तो आप देखो ये हमें डिजास्टर्स फील नहीं होते। डिजास्टर तभी फील जब हमारी दिस कंडीशन वर्स होती है, जब लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज प्रॉपर्टी होता है, और वी कैन से देयर इज द डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज इन दिस सोसाइटी, सो दैट इज नोन एज द डिजास्टर। बट जब यहाँ डिसरप्शन नहीं होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स हम खड़ा करेंगे जिनको कोई भी डिजास्टर से डैमेज नहीं होगा, ऐसे हम दिस बिल्डिंग्स खड़े करेंगे जिनसे लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी नहीं होगा, सो ये डिजास्टर हमें फील ज्यादा डिजास्टीरियस नहीं होगा। तो देन आफ्टर जो पॉइंट नंबर थर्ड है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू, वो मकसद क्या होता है सर्च एंड रेस्क्यू का। तो जो पॉइंट नंबर थर्ड है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन इन रिकवर, handover and dispose of dead bodies. So then after search and rescue team has one more this objective, one more they work perform, that is the they hand over and they dispose of dead bodies during the disaster. You know, there may be some persons which are dead in the disasters, the dead bodies वो dispose on dead bodies को कर रही है या hand over कर रही है, जिनको वो hand over करने हैं अपने this जो उनके जिस रिलेटिव्स होते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करके रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम द डिजास्टर साइड से। सो यू नो मे बी ड्यूरिंग दिस डिजास्टर सम पर्सन्स आर डेड, यानी जो वो उस डिजास्टर में आप देखो बहुत सारे पर्सन डेड भी हो सकते हैं, लेकिन सर्च एंड ऑपरेशन के दौरान हम उन बॉडीज को रिकवर करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देके हम उनको रिकवर करके, ये टीम उनको रिकवर करके आप देखो हैंडओवर कर रहा है अपने दिस रिलेटिव्स को, एंड on dead as well as disposal of dead animals. उसके बाद आप देखो at the disastrous area, at the disaster area there may be some animals which are dead in the disaster, so to prevent spread of diseases they dispose it, यानी वो इनको किसी प्लेस पे आपको डिस्पोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप देखो उन डेड बॉडीज को डिजास्टर साइड से आप देखो किसी जगह आप देखो डिस्पोज कर रहे हैं। तो अगर ये आप देखो डिस्पोज ना किए जाएंगे तो डिजीज और ज्यादा होंगे इन डेड बॉडीज से, इन डेड एनिमल से, और जो ये डेड बॉडीज है तो ये डिजास्टर हमें और ज्यादा डिजास्टरियस फील होगा। तो उन डेड बॉडीज को हम रिकवर करके हैंड ओवर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटिव्स को, एंड एज वेल एज द डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, सो टू प्रिवेंट द डिजीज, ये भी उनका काम होता है। इनका खाली सर्च एंड ऑपरेशन करके पेशेंट को रेफर करना नहीं होता है, उसके अलावा जो और भी चीजें डिजास्टर से रिलेटेड होती है, जो डेड बॉडीज है उनको रिकवर करना है, एनिमल्स को डिस्पोज करना, दिस इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज द वर्क परफॉर्म्ड बाय द टीम ऑफ दिस प्रोफेशनल्स और वी कैन से रेस्क्यू टीम। सो द पॉइंट नंबर 4, that is the to take necessary steps in cordoning of damaged and collapsing buildings। तो एक और इनका काम जो होता है वो to take necessary, आप देखो इनको बहुत सारे ऐसे cautious steps लेने पड़ते हैं, necessary steps होने cordoning of damaged and collapsing building। जब ये damaged and collapsing buildings को cordoning कर रही है, सर्च एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, ये टीम ऑफ these professionals जो होता है, ट्रेन टीम होता है, to take necessary, इनको बहुत सारे आप देखो दिस होशियारी से काम लेना पड़ता है, इनको कॉशियस अपने एक्शन से रहना पड़ता है, अपने स्टेप से इनको कॉशियस रहना पड़ता है। जो ही ये कॉर्डनिंग ऑफ डैमेज्ड बिल्डिंग, आप देखो जब ये सर्च कॉर्डनिंग कर रही है, उनको उन बिल्डिंग की सर्च कर रही है, जो कोलैप्स या डैमेज्ड बिल्डिंग होते हैं उनको हर एक्शन में आप देखो कॉशियस नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो कैसे ओपन करनी है, एंटर कैसे बिल्डिंग में होना है, डोर्स कैसे खोलने हैं, पेशेंट को डेब्रिज से कैसे निकालना है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक होगी, जो वायर्स होते हैं या आप देखो बाकी चीजें जो होती है उनको कैसे हम मतलब टैकल करेंगे उस डिजास्टरियस में। आप देखो जो भी हमें काम करने हैं, जो भी हमें स्टेप्स लेने हैं, जो उसमें तरीके होते हैं, कैसे पेशेंट को निकाला जाएगा, कैसे पेशेंट को ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा, और उसके बाद कैसे इस डेड पेशेंट को डेब्रिज से, सॉरी आई मीन डेड पेशेंट्स को, या उसके अलावा विक्टिम जो आप देखो इंजर्ड पर्सन है उनको कैसे आप देखो, इन सारी चीजों के साथ आप देखो इनको कॉशियस रहना पड़ता है जब ये कोऑर्डिनेट कर रही है आप डैमेज एंड कोलैप्सिंग बिल्डिंग। क्यों? अगर ये नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेंगे, अगर ये कॉशियस नहीं होते तो ये डिजास्टर और भी डिजास्टर होगा। क्योंकि अगर इन्होंने कोई आप देखो टेक्निक के दौरान स्किल के जरिए आप देखो या उन स्टेप्स और टेक्निक्स या नॉलेज का इस्तेमाल किए बगैर आप देखो इन्होंने सर्च ऑपरेशन किया, तो दैट मीन्स वो और डिजास्टरियस सिचुएशन पैदा करेगा। फॉर एग्जांपल इफ दिस सर्च एंड रेस्क्यू टीम अगर
वायर्स जो होंगे उसको ये कंसिडर करना, ये एलआईओ है, इसमें आप देखो इलेक्ट्रिसिटी होगी या नहीं होगी, जो भी आप देखो तो उनको आप देखो वहां पे उसको हैंड से मतलब हैंड डायरेक्ट नहीं लगाना है उनको, यानी कटर्स का इस्तेमाल करके उनको कट करना है। ये नहीं सोचना है कि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मे बी उसमें हो सकती है, तो इनको वैला है कि आप किसी भी वायर को आप देखो। दूसरा पॉइंट इनको आप देखो कॉशियस है, आप किसी जगह भी आप देखो फायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप लाइटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आई मीन आप लाइटर वगैरह नहीं जला सकते हो, माचिस नहीं जला सकते हो, क्योंकि मे बी आप देखो बहुत सारी गैस वगैरह आग और भी, तो ये आप देखो डिजास्टर और भी फैल सकता है। तो उसकी लाइटर माचिस जलाने से आप देखो बिल्डिंग में आग लग सकती है, क्योंकि गैस वगैरह लीक हो सकता है किसी जगह। सो उन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स के लिए आप देखो जब ये कोऑर्डिनेटिंग सर्च कर रहे हैं उनको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होता है। सो बेटा आपको याद रखना टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, सो सारी नेसेसरी स्टेप्स उनको उठानी है, ओन ही नेसेसरी स्टेप्स, ओन ही टेक्निक्स, या ओन ही दिस प्रोटोकॉल, और वी कैन से दैट इज द, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनको चलना जो उनको सिखाया जाता है। ये अपने आप देखो अपने अपनी दिस दिस पर्सन के लेवल से, इंडिविजुअल लेवल से आप देखो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते सर्च ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिश्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल साइकिल जो उनको करना है, तो तभी आप देखो ये प्रॉपर आप देखो सर्च एंड ऑपरेशन कर सकते हैं। सो देन आफ्टर वन मोर थिंग, दैट इज द point number 5 is there, train local volunteer in the assisting search and rescue operation, जो local volunteers होते हैं। So you know, if any society, if any region is in the disaster, so the team of professionals rushing to the support and perform this search and operation and to control the disaster. So this is the this objective aim of this team of professionals, and but the local people also help in assisting. So it is necessary for this team